pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. Namaskar, a very good morning to all of you in this live interactive session of ours where I regularly join with all those who believe in Ayurveda around the globe and try answering their questions, their queries, because when we talk about Ayurveda, the science of life, Ayurveda is not just usage of herbs, but Ayurveda is a lifestyle. We can live with the Ayurvedic guidelines every day and every breath of ours. And if we follow Ayurveda, we definitely can lead to a healthier life. When we are living during our living process, according to our karmas and according to the doshas, diseases are bound to come. But if we are using Ayurveda in the true sense, we definitely can alleviate a lot of those and can prevent a lot of those diseases. And the topic which I particularly am going to discuss today is hyperactivity. While I am corresponding with you in English, keeping in view the international patients, international Ayurveda lovers who are joining us from around the globe, being an Indian and loving my Hindi, I would appreciate if any of the question which you are asking is in Hindi, तो उसका जवाब मैं हिंदी में ही दूंगा. मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके मन में कोई भी सवाल हिंदी में हो, आप कृपया हिंदी में ही पूछिएगा. हालांकि मेरी जो भाषा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो इंग्लिश रहेगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग पूरी दुनिया से आयुर्वेद की तरफ जो आज एक उम्मीद से देख रहे हैं और आयुर्वेद के साथ जुड़ रहे हैं, प्रयास ये रहता है कि वो लोग भी सही आयुर्वेदा को समझ पाएँ. आज जिस टॉपिक पे मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हाइपर एक्टिविटी है, लेकिन किसी भी टॉपिक के ऊपर आप मेरे इस लाइव के दौरान मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और मेरा उस परमात्मा की दया से ये प्रयास रहेगा आयुर्वेद का जो बेस्ट से बेस्ट नॉलेज, जो ज्ञान हमारे प्राचीन ऋषियों ने, महाऋषियों ने दिया है, उसके अनुसार मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार आपको गाइड कर सकूं और हम आयुर्वेद में आयुर्वेद की मदद से हाइपर एक्टिविटी के लिए बढ़िया काम कर पाए. नशे बहुत बढ़िया होता है जी ऑटिज्म के लिए मोहित जी, लेकिन नशे में हम ऑयल का यूज़ कर रहे हैं. दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइपर एक्टिविटी इन एटलीस्ट 60 to 70% of patients. I would say kids, I won't say them patients. In 60 to 70% of kids who approach us in autism, hyperactivity is a very common problem. Many a time the parents, they will approach us, they will tell us that the child is really very hyperactive. He does not concentrate on a particular subject for a long time. He keeps on shifting his focus from one thing to the other, running about here and there. And again, when we go in the depth of that, hyperactivity can further be divided into two different parts: destructive hyperactivity and non-destructive hyperactivity. When we say destructive hyperactivity, now what is destructive hyperactivity? As per Ayurveda, destructive hyperactivity is there when the child is hyperactive, and along with being hyperactive, he may be hitting others, he may be throwing away the things, he may be banging his own head on the wall, and
aggressive kind of hyperactivity, destructive kind of hyperactivity. Now this kind of hyperactivity in Ayurveda is attributed to the combination of Pitta and Vata. In Ayurveda we go with the theory of doshas, Vayu, Pitta and Kapha, Vata, Pitta and Kapha. And when we are talking about aggressive hyperactivity, now that hyperactivity is with Vata and Pitta. And definitely when a child is aggressively hyperactive, the parents, when they tend to go to any psychiatrist, any psychologist or anyone whom they are seeking help for autism, they will always request the doctor, the consultant, that please control the hyperactivity of the child. And since in allopathy majority of the herbs majority of the chemicals which can be used can only work on the conscious mind, they don't have much to work on the subconscious, and luckily they use risperidone, they use ariprazole and other such salts which reduce the activity of the child, which I would say in simple language will sedate the child to a bit. And definitely when the child gets a bit sedated, the hyperactivity does come down. The parent thing for which parents are approaching the doctor, that does come down with allopathy also, with risperidone, with ariprazole. And personally speaking, if the child is really very destructive, very aggressive, there is no harm in giving them for shorter duration of time if you are not seeking the Ayurvedic help. But if you believe in Ayurveda, if you believe in the power of herbs, if you believe in man and man ke rog, then definitely even without going for those kind of medications, in Ayurveda there are multiple herbs, there are multiple essential oils which can be used for bringing down the aggressiveness as well as the hyperactivity of your child without a single side effect, without sedating the child. And rather than sedating, rather than giving any side effect, I would rather say it is like giving a very positive effect to the child, because any kind of hyperactivity with aggression, specifically when it is controlled with the help of Ayurveda, we work on the subconscious mind. Mind is having two parts, the conscious mind, the subconscious mind. When we talk about the conscious mind is the perceiving mind, the mind which is perceiving the things. When we talk about perception, again, if I am watching a bus coming towards me, now my eyes are giving me a signal that the bus is coming towards me, but my perception can be really very different. My perception can be that the bus is going to hit me. My perception can be that the bus is going to pick me up. I can perceive different kind of things from the same kind of vision, from the same kind of thing which I am watching. So perception, जब हम परसेप्शन की बात करते हैं, नमस्कार जतिन जी, आपने जानना चाहा है कि जो बच्चा हाइपर एक्टिव होता है वो कितने हफ्तों में ठीक हो सकता है। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूं जी। मैं परसेप्शन की बात कर रहा था, कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा था। आपको बताना चाहूँगा जतिन जी, ये इंटायरली डिपेंड करेगा बच्चे की एज कितनी है, हाइपर एक्टिविटी का ग्रेड कितना है, वो केवल वायु के कारण होने वाली हाइपर एक्टिविटी है या कि वायु और पित्त ये दोनों के दोनों मिले हुए हैं और वो डिस्ट्रक्टिव हाइपर एक्टिविटी है। आप हमारे साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं बच्चे के, आप एनालिसिस करवा सकते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। और आम तौर पे देखिए, आयुर्वेद अगर सही आयुर्वेद इस्तेमाल किया गया है तो हफ्ते के अंदर आयुर्वेद शरीर में आयुर्वेद की हर्ब्स पचने लगती हैं और अगले कुछ ही दिनों में थोड़ा थोड़ा असर दिखाने लगती हैं। लेकिन कई बार होता क्या है कि लोग जब हमें अप्रोच करते हैं, इतने समय से एलोपैथी के केमिकल्स खा रहे होते हैं, बच्चे के अंदर हाइपर एक्टिविटी इतनी परिपक्व हो चुकी होती है कि समय लग जाता है हाइपर एक्टिविटी के डाउन आते हुए। सो बच्चे में इमीडिएट हाइपर एक्टिविटी डेवलप की है, हम उस हाइपर एक्टिविटी के लिए उसे इमीडिएट आयुर्वेद दे देते हैं। हो सकता है हाइपर एक्टिविटी में चेंज आपको पहले हफ्ते में ही नज़र आ जाए। बच्चे को हाइपर एक्टिव हुए आज 5 साल हो गए हैं, बच्चे की उम्र 9 साल की है। हम कई चीज़ें ट्राई कर चुके हैं और अब आयुर्वेद की तरफ आए हैं। डेफिनेटली आयुर्वेद तब भी काम करेगा, लेकिन वहाँ लगने वाला समय डेफिनेटली अधिक रहेगा। सो ये केस टू केस वेरी करता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जब हम आयुर्वेद का इस्तेमाल हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं जतिन जी, तो हम कहीं पर भी अपने बच्चे को रत्ती भर भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रहे होते हैं। और जितनी भी
आयुर्वेद की हर्ब्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, वो रादर बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को इम्प्रूव कर रही होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की वर्किंग को इम्प्रूव करके। तो उसका लाभ ये मिलता है कि ना केवल बच्चा कम हाइपर एक्टिव होता है, बच्चा माँ बाप की बात सुनने लग जाता है, अधिक रिस्पॉन्सिव हो जाता है। और जब साथ के साथ साइकोथेरेपी के अंदर हम ABA इस्तेमाल करते हैं, जो हम पेरेंट्स को ही सिखाते हैं, तो बच्चे बहुत बेटर और बड़ी जल्दी इंप्रूव करने लग जाते हैं। देखिए, आज अगर एक चोर चोरी करता है, एक तरीका ये कि उस चोर को चोरी के बदले में जेल में डाल दिया जाए, वहाँ उसे डांटा जाए, सजा दी जाए, वो बाहर आएगा फिर चोरी करेगा, फिर बाहर आएगा फिर चोरी करेगा। और अगला तरीका क्या है, उसको बिठाया जाए, समझाया जाए, ज्ञान दिया जाए, धारणात्मक बुद्धि में, विवेक में वृद्धि की जाए। ठीक इसी प्रकार से जब हम हाइपर एक्टिविटी को रेस्पेरिडोन से, एरिप्राजोल से, सिडेट करने वाली दवाइयों से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये मन को जेल में डालने वाली बात है। जब दवा खाएंगे हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अंदर से धारणात्मक बुद्धि में कोई विकास नहीं होगा। और जब धारणात्मक बुद्धि में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा, तो केवल साइड इफेक्ट्स और टेम्परेरी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल ही हम हासिल कर पाएंगे ऐसे केसेस में। तो ज़रूरी हो जाता है कि हम बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है, देखिए हर बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा भी किसी ना किसी एज में हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन पुराने समय में दादियाँ, नानियाँ और आसपास वाले सभी सबसे बड़े मन के डॉक्टर हुआ करते थे। बच्चे की काउंसलिंग भी घर में हो जाया करती थी, 4 मगज की शरदाई दी जाती थी उसको, दिमाग को तरावट देने वाले तेल लगाए जाते थे बालों के ऊपर। सो कई इस प्रकार की इस्तेमाल की जाती थी चीज़ें उस बच्चे के लिए कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था और ऑटिज़म का टैग उस बच्चे पे नहीं लगाना पड़ता था। आज युग बदल गया है, आज हम बीमारियों को नाम दे रहे हैं और कई बार कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको नाम दिया जाता है। डेफिनेटली मेरे कहने से हर वो व्यक्ति जो ऑटिज़म से जूझ रहा है, उसकी वेदना, उसके आसपास वालों का दुख कम नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं केवल अपनी बातों से आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस अंधकार से आगे भी सवेरा है और ऑटिज़म को अगर सही तरीके से डील किया जाएगा, क्योंकि मन का रोग है, सही प्रकार से डील करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे, तो बच्चों को, इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों को इससे हम बाहर ज़रूर निकाल पाएंगे। मैं अगले प्रश्न की तरफ आता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, भावना कल्याण जी, आपने जानना चाहा है कि सर, कैन ऑटिस्टिक चाइल्ड लीड अ नॉर्मल लाइफ लाइक अदर्स? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो। सुशेन जी, डज सर्पगंधा वटी वर्क्स इन हाइपर एक्टिविटी एंड इज इट एनी साइड इफेक्ट? Sushen ji, when we talk about Sarpagandha Vati, yes, definitely it controls hyperactivity. It works on hyperactivity. Although simply relying on Sarpagandha Vati may not give some side effects, but will not give too many beneficial effects also. Sarpagandha Vati is a management kind of approach in autism, specifically hyperactivity. So when a child is being given Sarpagandha Vati, the hyperactivity will come down. However, it will not give too much of benefit in autism. So Sarpagandha Vati can be used as a replacement for Risperidone. In fact, Risperidone is a derivative, a chemical derivative of Sarpagandha. So chemical derivative with so many side effects. So rather than going for Risperidone, we definitely can go for Sarpagandha Vati, which is having negligible side effects, or I would say no side effects. But yes, if we start thinking that Sarpagandha Vati is a treatment for autism, that is entirely wrong. It will temporarily bring down the hyperactivity and it has to be combined with other herbs, so that it's not just about controlling hyperactivity. I always tell the parents, I always guide the parents that, see, if your child is today at an age of 6 years and you are worrying much about the hyperactivity, when the child will go to age of 14 years and the hormones will be activated, what then? He will become so powerful. So it's important to cure, it's important to bring the child out of that phase than to control. Controlling should be done only if things are out of control. If the hyperactivity is with so much of aggression that the child is causing too much harm to you, too much self-harm, then definitely we should use temporary measures like Sarpagandha Vati. Also, there is no harm in
in that, but otherwise treatment is something which should be the more sorted out thing. And then coming to the next question, Bhavna Kalyan ji, you have mentioned that, sir, can autistic child lead a normal life like others? Bhavna ji, my answer is yes. Autistic child can lead an absolutely normal life like other children. When I say that, it's easier for me to say, but tough for the patients to believe. Because when we, whatever might be the love we all are having for Ayurveda in our minds, but still, allopathy is still the more preferred pathy around the globe. During the last 30, 40, 50 years, allopathic world has done so much of research, and we nowadays believe more on research than on what our ancients have said. There was a saying which used to be that एक ने कही दूसरे ने मानी दोनों ब्रह्म ज्ञानी. I may be wrong in quoting the exact saying, because I remember more of Ayurvedic sayings than muhavras. But then what I would like to and what I want to tell you over here is that, see, there is a thing in Ayurveda which is known as Aptopudesh. Aptopudesh is Aptapurush, Pujyajan, those who are sacred to us. If they have said something, we need to believe them. But what we tend to believe is, if a doctor steps up, he does a research on 1,000 cases, and in those 1,000 cases, he feels that if sugar was given to children, that increased hyperactivity. So all of a sudden, even when that research was done for 1,000 cases and was done by a doctor of today's era, we believe his research and we say, yes, see, he has scientifically proven that sugar causes hyperactivity. And all of a sudden we will stop sugar in our child without thinking that our child may be Vataj, Pittaj, Kafaj. So different body types, the requirement of sugar are different. While sugar may cause hyperactivity in one child, it may be good for some other child. So it becomes very important that today's research is important, but Aptopadesh, what is Aptopadesh? Now, Aptopadesh, for example, we all know that if we will take ajwain is good for stomach ache, and many of us must have taken ajwain with warm water, and stomach ache would have gone. Is there any research on that? No, but we still believe it, because we know that our dadis, our nanis, our ancients were telling us about that. We followed it and we are enjoying the benefits of it. Not everything in this world requires a proof. If our ancients, if our scriptures, if the rishis, the saints, they have mentioned something. In Ayurveda we call it as Aptopadesh, and it is always said that believe in Aptopadesh. The good thing is that in US now, retrospective studies have been allowed. Now what is the retrospective study? That if something good is mentioned in the ancient text, start using it on patients, it will give results, and submit those results with us so that we later on start accepting it. So the power of Aptopadesh is now being felt around the world, and that is my genuine request to all of you. Believe in researches, but do believe in Ayurveda. Believe in what our ancient scriptures have to say. And if we want to control hyperactivity, let us come to the parent topic. And Bhavna ji, as I said, it's tough as a parent with world around us saying that autism cannot be cured to believe that an autistic child can lead a normal life. But do remember, had autism being such a severe disease, why it is then not mentioned as incurable diseases in Ayurveda? There are so many critical diseases mentioned in Ayurveda under the category of incurable diseases, even by our ancients. But autism has not been categorized over there in that category, because autism is an avastha of man. मन की अवस्थाओं में से एक अवस्था है ऑटिज्म, जिस अवस्था से बच्चों को बाहर लाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मन की एक अवस्था है तो केवल दवाइयों से नहीं लाया जा सकता है और केवल बातों से भी नहीं लाया जा सकता है.
If we start sending our children to occupational therapy, speech therapist, ABA therapist, yes, we are getting the management done. There is no harm in that. That will give a benefit. And if we are giving only herbs, we definitely are giving power to the subconscious mind. Again, that will give benefit. But if we really want, हरीश जी, अगर हम वाकई में ही चाहते हैं कि हम बाहर ला पाए ऑटिज्म से बच्चों को, तो हमें आयुर्वेद की हर्ब्स और उसके साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि साइकोथेरेपी, ABA जो हम सिखाते हैं वो दोनों करवाई जाए. ये मेरी विनती है आपसे. भले ही हम हैं, भले ही कोई और है, केवल दवाइयाँ मत खिलाएं. कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं. डेफिनेटली जो दवाइयाँ हमने तैयार करवाई हैं, जो हर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं कई सालों की, मैं अपनी रिसर्च नहीं बोलूँगा केवल, ऑल थैंक्स टू आर एंशियंट ऋषिज. आचार्य चरक को शत शत नमन, आचार्य सुश्रुत को शत शत नमन, आचार्य वाग्भट को नमन, और हर प्रकार के हमारे प्राचीन आचार्य जिन्होंने हमारा काम आसान कर दिया हर्ब्स को कंपाइल करके मेध्य और संज्ञा स्थापन में, उन सबको मेरा नमन. उन सभी की रिसर्च में विश्वास रखकर मेरे द्वारा जो मैंने रिसर्च की, प्रेजेंट की, वाकई में ही उस रिसर्च ने काम भी किया. और आज मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत से नन्हे फरिश्ते आज नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं. हम भी विश्वास करेंगे अपने बच्चों के लिए आयुर्वेद और साइकोथेरेपी मिला करके, हर्ब्स और सत्वावज्य चिकित्सा साइकोथेरेपी, हमें दोनों को मिलाना है. और ये याद रखिए, एक बच्चे का सही साइकोथेरेपिस्ट, एक बच्चे का सही मार्गदर्शक अकेला वो साइकोथेरेपिस्ट नहीं जिसके पास आप उसे स्पेशल एजुकेशन के लिए छोड़कर आ रहे हैं. आप खुद हैं. जब आपको हम सिखाएंगे और आप घर पर उस तरीके से चलेंगे, एक तरफ से जहाँ हर्ब सपोर्ट कर रही होंगी सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में क्विक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, वहीं दूसरी ओर काम कर रही होगी वो टेक्निक्स जो आपको एज पेरेंट सिखाई जाएंगी, ताकि ब्रेन की उस बेटर कोऑर्डिनेशन को हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल, स्पीच, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पॉन्स, आई कांटेक्ट, इस तरफ इस्तेमाल किया जा सके. मैं जल्दी कुछ क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ. बातें तो बहुत सी हैं आपके साथ करने के लिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके क्वेश्चंस मिस हों. एक एक करके आपके क्वेश्चंस एक्नॉलेज करने की कोशिश करता हूँ. माफ़ी चाहूँगा कोई भी क्वेश्चन अगर मैं मिस कर जाऊँ तो मैं आपसे तहे दिल से पहले से ही माफ़ी चाहूँगा. सुशैन जी आपने लिखा है माई चाइल्ड 4 year old. मैं एक बार आपसे पहले देख लूँ कि क्वेश्चन मिस नहीं हुआ हो. तो एज आई एम स्क्रॉलिंग आपने लिखा है 10 सर्पगंधा वटी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था. और भावना जी आपका जवाब भी आ गया, मैं आशा करता हूँ. सुशेन जी आपने जानना चाहे माई चाइल्ड 4 years old इज गोइंग थ्रू योर ट्रीटमेंट हैविंग पॉजिटिव चेंज बट मूड स्विंग्स आर हैपनिंग एंड शी टॉक्स द मीनिंगलेस थिंग. सुशेन जी, इट्स रियली गुड टू हियर दैट येस पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग अर वे. एंड एज फार एज द मूड स्विंग्स आर कंसर्न, ट्राई कि घर पर आप कुछ म्यूज़िक इस्तेमाल कीजिए मूड स्विंग्स के लिए. देखिए, म्यूज़िक हमारे मूड को बदल सकता है. आज हम दुख भरे गाने सुनेंगे तो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल आ जाएगी. जोश वाले गाने सुनेंगे तो हाइपर एक्टिविटी जो है वो बढ़ सकती है. या अगर कोई डिप्रेशन में चले गया तो उसे निकाला जा सकता है. आप एक बार हरलीन से कनेक्ट कीजिए, वो आपको कुछ म्यूज़िक थेरेपी के बारे में गाइड करेगी. एंड आई वुड रियली लाइक यू टू स्टार्ट यूजिंग द म्यूज़िक थेरेपी अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट. शिरो पिचू का इस्तेमाल, it is very good for mood swings and for avoiding the meaningless things. And when she is talking meaningless, still try corresponding with her lot and lot. Don't let her speak alone. That is something which is very important. You need to indulge in her meaningless talk and try deviating the talk towards a meaningful talk. You can take further details on this through her lean. हम आगे चलते हैं. और आप सभी की योर एप्रिसिएशन रियली मीन अ लॉट टू अस. थैंक्स अ लॉट फॉर द एप्रिशिएटिंग वर्ड्स. एंड हम आगे चलते हैं. आगे प्रश्न हरीश जी आपने कहा पेशेंट पार्थ, बच्चे में काफ़ी चेंज आया. धन्यवाद हरीश जी, बहुत बढ़िया लगा. परमात्मा करे पार्थ जल्द से जल्द एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीवन यापन करे. मेरी पूरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं. आयुर्वेद पे यकीन रखिए, खुद पे यकीन रखिए, उस परमात्मा पे यकीन रखिए. टिया जी आपने कहा सर कैन आई गिव स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स टू हाइपर एक्टिव चाइल्ड. यू कैन गिव हिम वनीला आइसक्रीम
and you can give him petha, you can give him spongy rasgulla, you can give him murabba after boiling the murabba and taking out the excess sugar from it. तो ये आप उसे दे सकते हैं. और हम आगे चलते हैं. आगे आपके कोई क्वेश्चन आपकी एप्रिसिएशंस, धन्यवाद उसके लिए. मंजीरी जी आपने कहा माय सन इज नाउ 4 years 2 months, ही स्टार्ट स्पीकिंग नाउ इन लास्ट 2 months बट नॉट क्लियर, he not join letters and he is hyperactive and attention show, he cure it. Manjiri ji, please do not worry, since he is already using some words, that means that it is easier for us in his case as compared to other children. I would like you to share some videos of your child on the helpline number which you can see on your screen. Don't worry, he's 4 years 2 months, we still have ample time on our hands. See, when I talk about time below 4 years, if you come to us, that is excellent because it is a reflex learning age. But between 4 years to 12 years even, it is not bad, because the younger the age, the easier it is for us. And at 4 years 2 months, he still is at a trainable age. Every day is precious. So please share some videos with us and we'll be guiding you in that regard. So not worry. Sameer ji आपने कहा sir, my son old 4 years completed but he didn't speak and hyperactive. Sameer ji, do not worry. Please share some videos of your child on our number. My team will be guiding you. We will ensure that you get the best of guidance. Don't worry. Please share the videos with us. And going further, I can see सुषमा जी आपने कहा सर बिहेवियर में पिंच करना, दांत काटना, क्या ये ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं? सुषमा जी, ऑटिज़म के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस के सिम्टम्स भी हो सकते हैं. कई बार बच्चे थोड़े एग्रेसिव अधिक होते हैं. अगर बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, बातें नॉर्मल कर रहा है, केवल और केवल वो ये सिम्टम्स शो कर रहा है, बाकी आपको बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो मैं चाहूँगा उस केस में आप पेठे का इस्तेमाल अपने बच्चे में अधिक कराइए. शिरो पिचू की ट्रेनिंग हमारी टीम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. आप में से कोई भी पर्सन ये सीखना चाहे कि शिरो पिचू कैसे किया जाता है, आप हमसे इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, शिरो पिचू आपके बच्चे के लिए बहुत लाभकारी है. बच्चे का छोटा सा वीडियो हमारे नंबर पे भेज दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए. शिरो पिचू ट्रेनिंग के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पे सिखा दिया जाएगा शिरो पिचू कैसे करते हैं, और आप अपने बच्चे के लिए वो ज़रूर करें, उसके लिए बहुत लाभकारी है. शिरो पिचू बच्चों में अवश्य करना चाहिए. कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड की कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है. हरीश जी, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे, मैंने हिंदी का उपयोग अधिक करने का प्रयास किया है. जूही जी आपने कहा है सर मेरा बेटा 6 years का है, ऑटिज़म है माइल्ड. जूही जी 6 साल का है, माइल्ड ऑटिज़म है. प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, अभी समय है हमारे पास. ऑटिज़म स्कोर अगर करवाया वो भी शेयर कीजिए. टीम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देगी. प्रयास रहेगा कि उसे जल्द से जल्द इस अवस्था से बाहर निकाला जा सके. शिफान जी आपने कहा सर हाउ टू कंट्रोल हाइपर एक्टिविटी एंड अनकंट्रोल लाफिंग, इज ऑलरेडी टेकिंग पंचकर्मा एंड मेडिसिन फ्रॉम रिस्ट पुस्ट. शिफान जी, प्लीज शेयर द वीडियोज, प्लीज शेयर द डिटेल्स ऑफ मेडिसिन ऑन द नंबर विच इज़ देयर ऑन द हेल्पलाइन. इफ रिक्वायर्ड चेक माई अवेलेबिलिटी हेयर इन इंडिया, मैं कहाँ कब अवेलेबल हूँ. स्पीक टू द टीम. अगर हम नहीं मिले हैं सो ट्राई इफ़ आई कैन मीट द चाइल्ड, इफ़ आई कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हिम. अगर ऐसा नहीं संभव है, मेरी बहुत ही समझदार और काफ़ी लंबे समय से काम करने वाली डॉक्टर्स की टीम जो मेरे साथ बात कर रही है, मेरे किसी भी एक डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बच्चे को इवैल्यूएट करवाइए. एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी साहिल के साथ शिफान जी को कनेक्ट करवाया जाए. टीम आप नोट कीजिए, एक बार साहिल के साथ शिफान जी को ज़रूर कनेक्ट कराएं. मैं ये भी चाहूँगा शिफान जी मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या वीकली बेसिस पे साइकोथेरेपी सेशंस चल रहे हैं. प्लीज़ शेयर द डिटेल्स विद मी एंड डू नॉट वरी. हम आगे चलते हैं एंड आगे हम देख पा रहे हैं रवि जी, टाइम टू क्योर ऑटिज्म. रवि जी, इट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन द एज एट विच चाइल्ड इज अप्रोचिंग अस एंड वेदर द ऑटिज्म इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. सो प्लीज शेयर सम डिटेल्स विद अस. वी विल डेफिनेटली गिव यू अ टेंटेटिव टाइम एंड देन वी विल बी गाइडिंग यू. जूली जी आपने कहा ये कहाँ पे है डॉक्टर, ये किस चीज़ के बारे में पूछा है. जूही जी आपने माफ़ी चाहूँगा क्योंकि तोड़ के क्वेश्चन आ रहा है तो मैं नहीं समझ पाया हूँ. मुझे प्लीज़ पूरा क्वेश्चन एक बार लिख दीजिए. हम आगे चलते हैं और आगे समीर जी आपने कहा सर डोज परसेंटेज रिकवरी बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन सर, वी आर वेरी सफरिंग फ्रॉम आवर सन, व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ सजेस्ट मी. समीर जी, इट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंडेबल दैट अ पर्सन कैन नॉट बियर द पेन द सफरिंग ऑफ अ चाइल्ड. बच्चों का दुख नहीं देखा जाता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एंड आई कैन अंडरस्टैंड. व्हाट आई कैन अश्योर यू इज़ प्लीज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड. Whatever can be done from my end, whatever I can guide you, I am always there to guide you. Sameer ji, number is there on your screen. You can share the videos. If you want to meet me, speak to my team, check my availability.
I will definitely be meeting you, guiding you also, and share some further details about your son. And don't worry Sameer ji, please do not worry. दिल नहीं छोड़ना है, मन पक्का रखना है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है. और हमें देखिए, जब भी सपोर्ट मांगे उस परमात्मा से मांगे, और आयुर्वेद में जो भी हम आपको सही गाइड कर पाएँ वो डेफिनेटली लाभ पहुंचाएगा. सो प्लीज़ शेयर सम वीडियोज़ विद मी ऑफ योर चाइल्ड, ताकि मेरी टीम, मैं आप लोगों को एश्योरेंस दिलवाता हूँ कि आज अभी मेरे इस लाइव के इमीडिएटली बाद आप में से जो लोग भी वीडियोस शेयर करेंगे, मैं कुछ डॉक्टर्स एलोकेट करने जा रहा हूँ. उनका नाम है डॉक्टर नवप्रीत, डॉक्टर निखत, डॉक्टर रुचि एंड डॉक्टर शुभ्रा. तो ये डॉक्टर्स आपको इमीडिएटली मेरे इस लाइव के बाद डिटेल्स देंगे, फिर मेरे से डिस्कस करेंगे. हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हम जो है वर्क कर सकें इन नन्हे मुन्ने बच्चों के ऊपर जिनके केस में आप हमसे सहायता चाहते हैं. तो हम आगे चलते हैं. तो बिल्कुल समीर जी, डीमोटिवेट नहीं होना है प्लीज़. जस जी आपने कहा, हेलो सर, माई बेबी इज़ 3 years old बट नेवर रिस्पॉन्ड हिज नेम. जस जी, इज़ योर बेबी अदरवाइज रिस्पॉन्डिंग to other commands, or is he asking for certain things from you? Is he doing it or not? So share some videos with us. And if he is 3 years old and not responding to his name, that is important, and we need to be taking it seriously and ensuring that he starts doing it. So please share some videos with us so that my team can help you in this regard. Tanya ji आपने कहा Mozart music is good for hyperactivity. Tanya ji, it will be commented on by Harleen. If I listen to the music, I can guide you. मैं थोड़ा पुराने ज़माने का पर्सन हूँ. I am a old fashioned Ayurvedic doctor, so I know more about the old music. There are names of various music which are being given. I can comment after listening to a music, but let us connect with Harleen, you with Harleen in that regards. You can share the details on the helpline number. All of you who are joining us on this live, we really appreciate that you are joining us over here. But what is equally important is, since on the live we do not get your numbers, we do not get your contact details, even if we want to help you out later on, it's not possible for us to connect with you. आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, विश्वास के साथ बंधते हैं, लेकिन क्योंकि नंबर नहीं होते हैं आप लोगों के, हम बाद में सपोर्ट नहीं कर पाते हैं. तो मेरी विनती है, जो नंबर आप देख रहे हैं 7791006006, ये हमारा 24/7 डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है. आप प्लीज़ इस पर अपने क्वेश्चंस जो आपने यहाँ यूट्यूब पे डाले हैं पोस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, बच्चों के वीडियोस भेज सकते हैं. किसी भी प्रकार की सहायता आपको हमसे चाहिए उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं. देखिए, आपको रत्ती भर भी ये नहीं सोचना है कि आप हमसे इलाज नहीं करवा रहे हैं तो क्या हम आपको सही सलाह देंगे. देखिए, उस ईश्वर की दया से आज अगर आयुर्वेद का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हमारी सलाह हमेशा सेम रहेगी, सही रहेगी, भले ही आप हमसे इलाज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं. निसंकोच पूछिए, मन में जो आता है पूछिए, पूछने से ही सही चीज़ पता चलेगी और हम आपको बता पाएंगे. तो जस जी, बिल्कुल बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाते हैं जी, आप चिंता मत लगाएं, हमारे साथ वीडियो शेयर करें. शिफान जी, आप लिखा 3 months हो गए हैं सर मेडिसिन देते हुए, हाइपर एक्टिव रिड्यूस नहीं हुई है, कोई स्पीच भी नहीं आई है, कमांड फॉलो नहीं करता है, पूरा आई कॉन्टैक्ट है, इज़ अबाउट 3 years. शिफान जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस केस में फिर चाहूँगा मुझे ज़रूर मिलिए, वो मिलना ज़रूरी है क्योंकि एक बार एनालिसिस ज़रूरी है. और प्लीज़ मुझे साथ में शेयर कीजिए, क्या हर हफ्ते साइकोथेरेपी साथ में ले रहे हैं. मेरी वही रिक्वेस्ट जो मैंने पहले कही, आयुर्वेद और साइकोथेरेपी मल्टीप्लाई होगी. किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा. बच्चे के कॉन्शियस सबकॉन्शियस की पूरी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के बावजूद भी साइकोथेरेपी मिस नहीं करनी. बहुत बार पेरेंट्स हर्ब्स खिला लेते हैं, साइकोथेरेपी मिस करते हैं, किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है. सर, हाउ द रैंडम, आपने लिखा है PS वांगखेड़ा जी, सर हाउ द रैंडम smiling can be minimized of an autistic kid. The random smiling of autistic kid can definitely be minimized. For that we do not require much medications, but we require more of psychotherapeutic techniques. Please share some videos with us for that. Let us connect you to our psychotherapist. He will be training you with certain gestures which you need to be following at that time, and gradually we will bring the child away from that random smile. If that is the only concern, that can be managed very easily. And coming further, there are questions. Yes, हम आगे देख पा रहे हैं सर कि आपने लिखा है there are many questions today, and seriously speaking I am going to miss out some of them, and I'm really
I'll really apologize for that. I'll definitely be going live with you again, but some questions I'm going to miss. Anna ji, आपने कहा लो sir, my son is speaking only few single words when proper speech comes. Anna ji, are you taking some kind of treatment from somewhere? Please share some videos, the age of the child, some further details, and we'll definitely will be guiding you. आपने लिखा है मेरा बच्चा आपकी मेडिसिन ले रहा है फ्रॉम February 23. वांकड़ा जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात है कि आप आयुर्वेद इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बाकी भी चीज़ें बताइए, कौन कौन सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, कौन कौन सी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट आगे फर्दर हमसे चाहते हैं, और प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए। और साइकोथेरेपी से हम इसे कंट्रोल करेंगे, तो चिंता मत लगाएं। अगर वो आयुर्वेद ऑलरेडी ले रहा है और रैंडम स्माइल का ही मसला परेशान कर रहा है तो हम ईजिली इसको साइकोथेरेपी से मैनेज कर देंगे, आप चिंता मत लगाएं। हम आगे चलते हैं और आगे हम देख पा रहे हैं निकोलस जी। हेलो सर, निकोलस बोल रहा हूँ। नमस्कार निकोलस जी, प्लीज़ आप अपना प्रश्न पूछिए। समीर जी, आपने कहा सर आई एम ऑलरेडी शेयर्ड वीडियो सर, 100% श्योर माई सन विल रिकवर विद आयुर्वेदा सर। दैट्स रियली ग्रेट दैट यू हैव शेयर्ड द वीडियोज़ एंड बी 100% श्योर सर, आयुर्वेदा रियली वर्क्स इन ऑटिज्म। It's your faith which can move the mountains, and with due faith carry on with the treatment. Start with Ayurveda, you will get good recovery, but again it should be Ayurveda and psychotherapy both. आपने लिखा है सर मेरा लड़का बात करता है बट बात करने के लाइन नहीं है, प्लास्टिक खेलते रहते हैं बस। निकोलस जी, कृपया अपने बच्चे के कुछ वीडियो शेयर कीजिए, और मैं चाहूँगा अपना यही प्रश्न एक बार आप जो नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर इस पर लिख भेजिए। मेरे डॉक्टर अभी आपसे कनेक्ट करके कुछ फर्दर डिटेल लेते हैं और आपको पूरी जानकारी इस बारे में देते हैं। सुषमा जी, आपने कहा सर 1.8 मंथ हो गया है पर वो दूध पानी नहीं बताता है, मम्मा नहीं बोलता है, सर प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए। सुषमा जी, हो सकता है कि थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट की नीड हो, दवाइयों की नीड ना ही हो, और हो सकता है दवाइयों की नीड हो भी। बच्चा भी 1.8 महीने का, आप चिंता मत लगाएं। वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो एनालिसिस करती है जब हमारी टीम, तो उसे पता चलता है। और मैं ये भी चाहूँगा सुषमा जी, आपको ना 4 मगज दूध में 4 मगज पीस करके बच्चे को दिया कीजिए, उसके लिए बहुत लाभकारी हैं। शिरोपिचू की ट्रेनिंग ले लीजिए, अभी इतने छोटे बच्चे के सिर पे शिरोपिचू करने का बहुत लाभ होता है, घर पे जरूर कीजिए। जो ब्रह्मरंध्र होता है हमारे सिर में, उस एरिया में शिरोपिचू किया जाता है। मेरी टीम आपको ट्रेनिंग दे देगी। आप अपना सेम क्वेश्चन प्लीज़ शेयर कर दीजिए जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चंस और भी बहुत से हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैं डेफिनेटली चाहता भी हूँ हमेशा कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाए। विनय जी, आपका प्रश्न भी है, और बट स्टेम सेल थेरेपी आपने करवाई है क्या? देखिए, स्टेम सेल थेरेपी वहाँ फ़ायदा करेगी आपको जहाँ पर आपको लगता है कि MRI में कोई प्रॉब्लम है। हमें सब जगह वो नहीं करवानी है, क्या कहते हैं, स्टेम सेल थेरेपी। सिर्फ वहाँ जहाँ MRI में प्रॉब्लम है वहाँ स्टेम सेल थेरेपी के कुछ लाभ देखे गए हैं। बिना बात के बच्चे में स्टेम सेल थेरेपी बिल्कुल मत करवाइए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मेरे से मिस हो गए होंगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उन नंबर्स के थ्रू रेगुलरली हमारे संपर्क में रहिए। आपने एक उम्मीद के साथ अपने बच्चे को आयुर्वेद में हमारे पास इलाज के लिए भेजा है। इलाज के दौरान ऐसी फेजेस भी आएंगी जहां आपको लगेगा बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। कोई महीना ऐसा भी हो सकता है जब आपको इंप्रूवमेंट कुछ कम लगे। कारण आयुर्वेद में मौसम के अनुसार, वेदर चेंज होने के अनुसार बहुत से बदलाव आते हैं। अलग अलग वेदर में अलग अलग गाइडलाइंस हैं। रेगुलरली आप हमारे चैनल के साथ भी बने रहिए। गाइडलाइन समय से समय हम आपको देते भी रहते हैं। मेरी टीम ऑफ डॉक्टर्स, टीम ऑफ साइकोथेरेपिस्ट आपको रेगुलरली रीच आउट करती होगी। किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि आपको रीच आउट नहीं किया जा रहा है, मेरे चैनल पे, डायरेक्ट यूट्यूब वाले चैनल पे आकर के आप कुछ भी लिख दीजिए, मुझ तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। और मैं यही आशा करता हूं कि उस परमात्मा की दया से, जिस विश्वास के साथ आप लोग हमारे साथ एक सूत्र में बंधे हैं, आयुर्वेद को आपने अपनाया है, हम बच्चों को जल्द से जल्द इस अवस्था से बाहर ला पाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि सभी स्वस्थ रहें, हृष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा अब आपसे आज्ञा चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार।